Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Government Middle School Durhama, Zone Jeshpura, Class 7. Again, we will deliver a lecture in science subjects. Today our topic is transpiration. आज हमारा टॉपिक क्या है? Transpiration. It comes under transportation. तो हमारा चैप्टर है transportation. ट्रांसपायरेशन बेसिकली व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, इफ यू गो इनटू द डेफिनेशन ऑफ दिस ट्रांसपायरेशन, ये बायोसाइंस में है. इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स इन प्लांट्स. यानी लॉस ऑफ वाटर, दैट मीन्स कि दिस वाटर जो कि प्लांट्स में होता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट्स. किससे ये एब्जॉर्ब होता है? रूट्स, थ्रू रूट्स. तो जब ये वाटर एब्जॉर्ब होता है, इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज. इन द लास्ट लेक्चर वी रेड दैट इट इज द वेस्क्यूलर टिश्यू और द जाइलम टिश्यू which help us in transportation of water and minerals. Xylem tissues are like the veins of plants. जिस तरह इंसान में veins होती है to carry different this blood to different parts. Likewise, we are having xylem tissues in plants which transports water and minerals to different parts of plant. यानी different parts, different branches from bottom to top. किससे ये होता है? Xylem tissues. In short, we can say the transportation of water in plants takes place through xylem tissues. Now, what happens to this water? जो पानी absorb होता है through roots from soil, then it gets transported to different parts. What actually happens to the water? Number one, इससे क्या होता है? One of the important processes takes place. It helps us in one of the important processes in green plants, that is photosynthesis. जो हमने we have already read this, because we know that it is H2O and CO2 which gives C6H12 O6 in presence of sunlight and chlorophyll. That means ये जो water है, it is very important component in case of photosynthesis. ठीक है? यानी जो photosynthesis होती है, उसमें जो important raw material है, वो क्या होता है? Water. क्या होता है? Water. This water is absorbed through roots from the soil and is transported to different parts by xylem tissues. Xylem tissues. क्या वो समझ? Yes sir. You see भाई, आप जो water है, पानी है, इसका जो important role है, that is in photosynthesis. That is in photosynthesis. यानी without water there will be no photosynthesis in plants, especially in green plants. There will be no photosynthesis in plants if there is no water. जो water absorb होता है, वो इस process में इस्तेमाल होता है. इसे समझ में होता है? इसके में जो इसकी जो remaining quantity है, that helps in other activities, growth of the plant, etc. जो भी बाकी इसमें एक्टिविटीज होती है, दैट डिपेंड ऑन वाटर. नाउ ये ट्रांसपायरेशन कॉन्सेप्ट अब कहाँ से आया? अब जो एक्सेस वाटर है, मतलब इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, जो पानी इस्तेमाल हुआ है प्लांट में, अब जो एक्सेस वाटर है, इसके अलावा जो वाटर है जो प्लांट में हो, दैट गेट इज लॉस्ट इन द एटमोस्फेयर. दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. Are you getting this? Yes, समझ आ रहा है आपको? Yes sir. Plants absorb water from soil through roots, then it gets transported to different parts of the plant. A huge quantity of water, or the main part of this water is usually photosynthesis. Photosynthesis हो गया and other activities of the plant. अब जो remaining quantity of water है, वो बाहर हो जाती है एटमॉस्फेयर में. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Transpiration. क्या समझना? That is called transpiration.
युस आब प्लांटन को इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस खतर बाकी पत चढ़ो तक दैट गेट्स लॉस्ट इन द एटमोस्फियर थ्रू लीव्स। उसमें जो छोटे पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जोर से बोलो। जो छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स which helps in transpiration, उनको क्या बोलते हैं? Stomata. That gets lost in the air atmosphere through stomata. That is called transpiration. उसी प्रोसेस का नाम दिया गया है क्या? Transpiration. अब ये ज्यादा it is not so much मतलब difficult concept. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं, it is the process of loss of water. प्रोसेस है ये, एक अमल है, एक प्रोसेस है। लॉस होता है ये वाटर, इसमें लिखा है लॉस, मतलब इट इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, यानी ये प्लांट में नहीं रहता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म लॉस, लॉस ऑफ वाटर। मगर किस फॉर्म में हो जाती है? इट इज नॉट ए लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है, इट गोज इनटू वेपर फॉर्म। किसमें हो जाता है? Vapor form. अगेन इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन अ वेपर फॉर्m फ्रॉम द लीव्स इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। किससे हो जाता है? Stomata. यानी if we define this concept at the level of clause 7, it is the loss of water in plants in vapor form through stomata. Through stomata. ये समझा आपको? इसके बाद आप इसका मैकेनिज्म क्या है? How it takes place? How transpiration takes place? किससे हो जाता है? इसका मैकेनिज्म, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? सिंपल है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट्स। पहले फर्स्ट थिंग जो है दैट इज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट्स। सेकंड इट मूव्स अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ जाता है। गेस ना बाकी इंपॉर्टेंट। देन a part is used in photosynthesis, growth etc. in different activities of plant. इसका जो आधा हिस्सा होता है या उसकी जो मेन क्वांटिटी होती है वो किस में इस्तेमाल होती है? A part of it is water is used in photosynthesis, growth etc. इससे एक जब ये फोटोसिंथेसिस या ग्रोथ में इस्तेमाल हुआ उसके बाद क्या हो जाता है? एक सक्शन जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? That gets lost through the stomata. अब जो स्टोमेटा से ये बाहर ये जो वाटर है इट गोज इनटू एटमॉस्फेयर। जहाँ जो ये इसके सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। दे आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स होते हैं, अब ये जो उनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, फिर जब ये बाहर जाता है इन द वेपर फॉर्म, इससे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर। ये सतन गेदन को आप ये बाहर हो गया, इसमें कमी आ गई, यहाँ प्रेशर डिफरेंस होगी। वन जो आप ज्यादा पर्सन आप क्या मतलब की दिस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स द सक्शन पुल, एक पुल हो जाता है इसमें, तो आप दबाव आप सकते हो। दिस वाटर गेट्स दिस वे वाटर गोज टू डिफरेंट हाइट्स। इससे एक चीज ये भी होता है कि हाउ वाटर गोज फ्रॉम बॉटम टू top of the plant because of this suction pull which is generated by transpiration. When transpiration takes place in the vapor form, water is lost. This exerts pressure to nearby cells. Guard cells exert pressure to nearby cells. They are called basophil cells. Then this exerts pull on another cells. This pull reaches to bottom of the plant, and this way water is gets raised up to the heights of the plant, and a part is lost in the form of vapors. अब जो हमने मैकेनिज्म देखा है, we have seen कि water is absorbed through roots, it moves upwards, a pot is used in photosynthesis and grows. When this extra amount of water is transpired, जो बाहर हो जाता है, उससे एक पुल डेवलप हो जाता है, this is called suction pull, जिससे नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। अब ये मैकेनिज्म है इसका। थर्ड पार्ट जो इसका है दैट इज इंपॉर्टेंस। क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है? कशीर पे यह लगन वो ट्रांसपायरेशन कह फायदा कि अम कुछ फायदे वो उस पर हम बात करेंगे। वन थिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, एक चीज इसमें होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो जाता है, बिकॉज व्हेन सक्शन पुल इज जनरेटेड दिस
raises the extra amount of water to the heights of plants from the roots. यम साथ निकल आप जब यहाँ पर पानी वेपर फॉर्म बाहर हो जाता है, जो मैंने भी बोला, इससे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, सक्शन प्रेशर या सक्शन पुल, वो नियर बाय सेल्स को ये प्रेशर डेवलप करता है, जिससे पानी नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, टॉप पर आ जाता है. इसमें इस पानी में मिनरल्स भी होते हैं. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, सेकंड थिंग, इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट. जो प्लांट है उसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है. व्हाट्स कूलिंग इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट मीन्स व्हेन कॉन्स्टेंटली ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस. जब बार बार ट्रांसपिरेशन होती है, कहाँ से ट्रांसपिरेशन होती है, किस पार्ट से होती है? लीफ से. लीफ में से छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिटोमेटा. सिटोमेटा. जो सिटोमेटा से अब जो कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर होता है, अगर हम देखेंगे कि अगर हम बाहर जो हमारे प्लांट्स इर्द गिर्द है, चाहे एप्पल के प्लांट्स है, पॉपुलर के प्लांट्स है, विलोज के हैं, पाइन ट्रीज है, जो भी प्लांट्स बाहर हम देखते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, दे आर ऑलवेज ग्रीन. ये है कि नहीं? यस सर. इट्स नॉट सबज हमेश, ऑल्दो दे आर इन हाई टेम्परेचर 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री. व्हाई डोंट दे गेट ड्राई? वो क्यों नहीं सूखते? फिर क्या शुभ है? व्हाट इज द रीजन? यहाँ पर आप देखते हैं बाहर, दिस इज वॉलनट ट्री, इसके पत्ते हैं ना बाहर. बाहर धूप है कि नहीं? आज जो टेम्परेचर है, इट मे बी 30, 32. तो फिर ये क्यों नहीं सूखते? व्हाई डोंट दीज लीव्स गेट ड्राइड अप इन द हीट ऑफ द सन? इसका क्या रीजन है? अगर हम इस पत्ते को अभी तोड़ेंगे तो 1 घंटे के बाद जब हम बाहर जाएंगे, वी विल सी दैट इट हैज गॉट ड्राइड अप, ये सूख चुका है. दिस मीन्स इसमें कुछ ना कुछ होता है जिससे ये इसका टेम्परेचर कम रहता है, कूलिंग इफेक्ट इसमें पैदा होता है. सो कैसे चुका सर? वो किससे होता है? अभी हमने पढ़ा ना, वो पानी से होता है, इसी वाटर से होता है. जब वाटर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली उसकी इवापोरेशन होती है, जो वाटर इसमें प्रेजेंट होता है वो इवापोरेट होता है, इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है. सोचने का सम रिलीज, सोच कारण इधर क्या कूलिंग इफेक्ट पर. दिस कूलिंग इफेक्ट प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ लीव्स इन द हीट ऑफ सन. इससे जो पौधे होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स में या हाई टेम्परेचर्स में, 32, 30 डिग्री, 35, 40, they don't get dried up. वो फ्रेश रहती है. नंबर 1 इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रांसपायरेशन. 1 इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. चलो आप भी बताएं. शाबाश. फर्स्ट चीज क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. फर्स्ट. सेकंड क्या है? इट क्रिएट्स कूलिंग. किस में करता है? इन प्लांट्स. शाबाश. लेट्स रिकैप्चुलेट दीस 3 कॉन्सेप्ट्स. जो ट्रांसपायरेशन होता है, ये क्या होता है? जरा आप जोर से. It is the process of loss of water in a vapor from the leaves in plants. किससे हो जाता है? Through stomata. स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स लीव्स में जो होते हैं. आप उसमें कोई नियर, इसमें छोटे छोटे पोर्स ऑलरेडी होते हैं. अब जो मैकेनिज्म है, किस तरह से ट्रांसपायरेशन हो जाती है, वो इस तरह के वाटर, जो फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि वाटर इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू रूट्स फ्रॉम द सॉइल फर्स्ट, देन इट मूव्स अपवर्ड्स. Part is used. A part is used in photosynthesis and other processes. फिर इससे क्या हो जाता है? जब एक्स्ट्रा अमाउंट लॉस होता है तो एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है. दिस गिव्स मोमेंटम टू द वाटर फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. इस वाटर में क्या चला जाता है? मिनरल्स भी. हाँ, ये मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट किस टिश्यू से हो जाता है? Xylem tissue. Xylem tissue. वेरी गुड. अगर हम फूड की बात करेंगे, Phloem tissue. phloem tissue. वेरी गुड. तो ये इसका मैकेनिज्म है. सेकंड, अब जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि नंबर 1 इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके, सो जाइलम फ्रॉम दिस रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट्स है, टॉप है, लीव्स है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग? इट क्रिएट्स Effect. कौन सा इफेक्ट है? Cooling. कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट्स. जिससे ये हो जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होते हैं, दे आर ऑलवेज फ्रेश इन द राइजिंग टेम्परेचर्स. बाहर हमेशा वो सूरज की गर्मी में भी वो फ्रेश रहते हैं. इज बिकॉज. थैंक यू अ लॉट फॉर टुडेज क्लास, एंड इंशाल्लाह अगेन वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच.